आए हो निभाने को जब अपना किरदार जमी पर, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर जाएं कि जमाना मिसाल दे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय टॉक शो इंस्पायरिंग लाइव्स बाय मनु। Inspiring Lives by Manu is an initiative to honor and highlight the unsung heroes of our society. People who have been successful in their respective lives and have been contributing a lot in making a difference in other people's lives. कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो खुद तो सफल होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। वो दूसरों की जिंदगियों में तब्दीली लाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ नायाब हीरो से। Today we are going to meet a very young, vibrant, compassionate philanthropist. She is working day and night, unconditionally and selflessly, for the street dogs and the other stray animals. Miss Ayushi Sharma. Ayushi is the founder of Furry Angels, an organization which is working day and night for the street dogs and the other stray animals. So let's hear her inspiring journey. आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, मिस आयुषी शर्मा। Welcome, Ayushi, to my show, to the talk show Inspiring Lives by Monu. I'm so glad to see you here. Thank you so much for giving me a beautiful opportunity. It's my honor that you invited me in such a prestigious show. Thank you once again. It's our pleasure, Ayushi, and thank you so much for accepting my invite to be on this show and sparing your valuable time. First of all, I would like to know, in fact, there are so many things which I would like to know, and our viewers specifically, they must be actually very anxious, very excited to know more about you because at such a young age. So, first of all, please tell all of us what is your current age? What is your present age? I completed 23 this February, so entered my 24th age phase. Let me tell you that. Wow. So too young. Not 24 like completely. Too young to be a philanthropist, and we are so amazed to see the kind of work you are doing. What's your background, Ayushi? How did it started? Where did you did your education, your schooling from? Tell us something about your background and your family. Who all are there in your family? So I thank God every day. I'm blessed with a wonderful family. Like they are the most supportive pillars in my life, and through thick and thin, they are always there for me. My mother is a certified auditor. Okay. My father owns a small business. My brother is an engineer, and his wife is a postgraduate. So we have like a small family, and I have two adopted angels, my dogs, Daisy and Augie. So my family consists of these people, which are very close to my heart. Beautiful. Very nice. Coming to my educational background, after 12th, I was not so very bright student, but very good in few subjects. So I decided to do a diploma course from Franklin to study about aviation, tourism, and hospitality. Okay. So Great. after 12th, I joined that diploma for 1 year. And then I got placement from Franklin only. तो जो मेरी सबसे पहली जॉब थी वो BMW बर्ड ऑटोमोटिव से मैंने अपना करियर शुरू किया था. और वहां पे मैंने करीबन 2 साल काम किया. What were you working there as? Customer relation department. Okay, great.
I was working as customer relation officer in the back end with the Mm-hmm. customer relation team. Okay, very nice. तो वहां पे 2 साल काम करने के बाद मुझे उससे भी बेहतर एक अपॉर्चुनिटी मिली, पर साथ साथ जो मेरी एजुकेशन थी, मेरे Mm-hmm. पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, आपको अपनी एजुकेशन जरूर पूरी करनी है, तो Which is very डिस्टेंस से important. मैंने अपनी Yeah. पढ़ाई Mm-hmm. Okay. कंप्लीट की, Okay. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने डीयू से एडमिशन लिया, एसओएल से, और वहां से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी जॉब के साथ। हाँ जी. Okay. So always I was always a multitasking person in my life. Yeah, that's तो really nice. बीएमडब्ल्यू के तुरंत बाद मैंने उससे भी एक बड़ी अच्छी कंपनी, So why बीएमडब्ल्यू you के have तुरंत not बाद मैंने उससे भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। okay, why you have not opted for aviation industry? I mean, like you could have actually become air hostess in some airlines. So because you did a diploma, as you mentioned, so that never fascinated you या to join aviation? it fascinated me so much that I cleared Qatar Airways interview in Okay. Hyatt, Delhi. Okay. And all the rounds were cleared by me. The only concern was Hmm. that I have ulcerative colitis. That means ulcers and intestines. So Okay. that requires so much care and a stress-free life. Uh-huh. Okay. तो उस दौरान वो प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा थी। टचवुड अब Hmm. बिल्कुल भी नहीं है। तो Okay. मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे छोड़नी पड़ी। I can understand. Yeah. या Okay, fine. So, I mean, the kind of work you are doing, like you are taking care of the street dogs and the other animals like cows, and I think you can tell us better, okay, what all things you are doing on your daily basis, how this journey began. I mean, how this idea came up in your mind, what was your inspiration, what inspired you actually to start this kind of, community service and philanthropic work? देखिए, जिस माहौल में आप बड़े होते हैं वो बहुत मैटर करता है होते हैं, और आप देखते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कि वो Hmm. किस तरीके का उनका रूटीन है और वो कैसे हमें रेज कर रहे हैं। Right. मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने शुरू से ही अपने घर में बहुत ज्यादा इमोशन, सिंपैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जानवरों के प्रति। हर Okay. दिन Very nice. हमारा दिन शुरू होता था, मेरे ग्रैंडफादर बर्ड्स को बाजरा डालते थे, आंट्स Hmm. को चींटियों को आटा डालते थे, गाय को रोटी जाती थी या कई बार चारा जाता था, और डॉग्स को कभी मिल्क जाता था, बटर मिल्क जाता था, पनीर रोटी जो भी घर में अवेलेबल होता था। Very nice. Rather Very than nice. my grandfather taking me to a park to Hmm. enjoy like other kids, he would take me to feed those animals every day and make me understand that they are our responsibility Yeah. So sweet. every day. Very nice. और फिर कोई भी फीमेल डॉग अगर कभी बच्चे दे रही हैं तो मेरे मदर फादर, मेरे ग्रैंडफादर इतना ख्याल रखते थे कि हाँ वो जी. चीज मेरे दिल में और मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई कि नहीं, जानवर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Very कोई nice. भूखा है, किसी को चोट लगी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। Okay. मैं उस That's एनवायरनमेंट में जब बड़ी हुई तो वो चीज मेरे दिमाग में, दिल में इतनी ज्यादा हो गई कि मतलब ह्यूमन से ज्यादा मुझे जानवरों पे तरस आता है hmm. हर दिन, आज Okay. तक भी। Okay. तो जब मैं अपनी लास्ट जॉब कर रही थी जो कि इम्पल्स इंडिया में थी, और वो एक बहुत अच्छी जॉब थी, आई वाज ऑन अ सीनियर पोस्ट है, Mm-hmm. और साथ साथ मेरे पेरेंट्स की कंडीशन थी कि एजुकेशन में तुम्हारी जो आखिरी एजुकेशन होगी दैट शुड बी एमबीए, Okay. जो मेरी अभी इसी साल खत्म हुई। हाँ जी. हाँ जी. तो जब मैं इम्पल्स में थी, सुबह शाम ही मैं जानवरों से मिल पाती थी, उनको खाना दे Hmm. पाती थी अपने फादर के साथ। Right. किसी को अगर मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो मैं कभी उनको टाइम पे नहीं ले जा पाती थी। Okay. और जब मैं हर दिन ऑफिस जाती थी, मुझे वो गिल्ट इतना ज्यादा खा रहा था कि Hmm. मैं नहीं कर पा रही जानवरों के लिए कुछ, Hmm. जैसा मैं सोचती थी, जैसा मैं चाहती थी कि वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहती थी, बट एज आई टोल्ड यू कि मैं कोई इतनी ब्राइट स्टूडेंट नहीं रही, Mm-hmm. तो मैं वो नहीं बन पाई। दिल में मेरे इतनी ज्यादा वो गिल्ट भरती गई कि नहीं, सुबह शाम का खाना सिर्फ इनफ नहीं है, आयुषी, यू हैव टू I do not मेक agree with this सैक्रिफाइस। point of yours, Ayushi, which you mentioned that you have not been a very bright student. Brightness does not come with the academic scores, solely.
Yes, it is a part and parcel of education system of our country. But yes, I think the kind of work, the kind of mindset you had, the kind of values, the virtues which has been inculcated by your family, आपके जो संस्कार हैं, जो आपको value system एक अपने family से मिला, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके grandparents ने आपको बहुत प्रेरणा दी है, they have inspired you a lot. तो I think इससे ज्यादा brightest मेरे हिसाब से और कोई बच्चा नहीं हो सकता, बिकॉज आपने कुछ ऐसा हटके सोचा लाइफ में जो बहुत रेयर ही कोई यंगस्टर सोचेंगे आज की डेट में, जो मिलेनियल्स जिन्हें हम बोलते हैं, they are moreover interested, and at the age of 23, you're just 23, इस एज में बच्चों को होता है कि we should be just freaking out, we should be just going for parties, clubbing के लिए जाएं, they should go for having fun with friends, they should go for traveling, or maybe they want to pursue their own passion, their dreams, but you are actually thinking for उनके लिए आप सोच रहे हो जो बेजुबान हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बोल नहीं सकते, जो अपनी फीलिंग्स हमें बता नहीं सकते. आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल thing which you are doing. It's a very noble cause. It's a very noble cause. I personally admire you, Ayushi, whatever you are doing, being on such a young age, and it is commendable. It is very commendable. But we would like to know more about this work of yours, Ayushi. आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे कि आपका एक डेली रूटीन क्या है? What do you do normally for them? Thank you so much for your beautiful words again. You left me speechless. And to be honest, जैसे बचपन से हम बड़े होते हैं ना, तो आपके आसपास के लोग आपको फील करा देते हैं, अगर आपके मार्क्स नहीं आते, कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे. मुझे भी Very. ऐसा बहुत बार लगता था, टू बी ऑनेस्ट, कि अरे मेरे कजिन्स के अच्छे मार्क्स आ गए, अरे मेरे फ्रेंड्स के अच्छे मार्क्स आ गए. बट मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी मुझे किसी से कंपेयर नहीं किया, कभी मेरे मार्क्स को लेके मुझे अनब्राइट नहीं बोला. हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार आ जाएंगे. और जब मैं उनका वो विश्वास देखती थी ना, that led me to do more in studies. Okay. तो मेरे दिन पे आते हैं कि मेरा दिन कैसे शुरू होता है. तो मेरे पेरेंट्स सबसे पहले मॉर्निंग में वो जाते हैं एटलीस्ट 30 to 35 डॉग्स को मॉर्निंग में खिलाने, जिनमें काफी सारी मदर डॉग्स हैं, क्योंकि उनको 2 टाइम खाना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनको अपने बच्चों को भी खिलाना होता है. और हमारा दिन ऐसे ही शुरू होता है कि मम्मी पापा एक लॉट को खिलाने जाते हैं, हमारे जितने भी एंजल्स हैं. ये कहाँ जाते हो आप लोग? Which place do you go early morning? सेक्टर 50 गुड़गांव. सो लोटस वैली स्कूल का पूरा एरिया से लेके टिल गोल्फ कोर्स का हाफ एरिया. अच्छा, वेरी नाइस. एंड गुड अर्थ सिटी सेंटर के पास जितना भी एरिया है, वी कवर दैट एरिया. सो टुडे वी आर फीडिंग मोर देन 100 डॉग्स. ब्यूटीफुल. 100 के बाद तो मैंने काउंटिंग ही बंद कर दी. That's amazing. I mean, we feel so uncomfortable if we just see 2 or 3 dogs in our street. I mean, we think like, I mean, they are why they are actually moving here and there unnecessarily. But I think this is like really very noble, very commendable. You are feeding more than 100 dogs. I mean, yeah, and some of them are like 15 in a pack of 15 in a pack of 10. बट कभी डर नहीं लगा, लेट मी टेल यू. मुझे कभी डर नहीं लगा, बिकॉज हमेशा मेरे दिमाग में ये चीज रहती थी कि ये अर्थ भगवान ने सबके लिए बनाई है, जितनी हम मेरी और आपकी, उतनी ही उन जानवरों की. फर्क इतना है कि हम उनके घर में रह रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं रह रहे. हम इतने सारे फॉरेस्ट कट गए, वो बेचारे बेसहारा हो गए. अब इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई, तो जो मेल काउस थे वो बेचारे रोड पे आ गए. तो कहीं ना कहीं हम बहुत रिस्पॉन्सिबल है उनका घर खराब करने में, टू बी ऑनेस्ट. वेरी ट्रू, आई एग्री. एंड जो भी मेरी दिनचर्या कभी भी प्रिडिक्टेड नहीं होती. अगर कोई डॉग बीमार पड़ गया तो उसको लाना ले जाना, डॉक्टर के दिखाना, घंटों लाइन में वेट करना. कई बार ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, कई बार लंच मिस हो जाता है. और इन सब चीजों में जो मेरा साथ देती हैं वो मेरी मदर है. She stands still with me like a pillar कि मैं हूँ तुम्हारे साथ. Very nice. उसके बाद ऑड आवर्स पे कॉल आ जाता है, एक्सीडेंट हो गया, लोग इतनी तेज ड्राइव करते हैं. I know, they are so careless.
every now and then a dog gets paralyzed. एंड आज हाँ. भी मॉर्निंग में भी मैं एक ऐसा केस हैंडल कर चुकी हूँ. हमने अच्छा. उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा है. लेट्स होप फॉर हिज बेस्ट, टू बी ऑनेस्ट. हम्म. तो उसके बाद कभी वैक्सीनेशन ड्राइव है. हर महीने मैं फीमेल मेल डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजती हूँ, ताकि ओके. नए नए पपीज ना आए और उनकी जिंदगी खराब ना हो रोड पे, क्योंकि अच्छा, वो सो कोई उनका फ्यूचर. ये जो आपने आई मीन जैसे बताया कि स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड उनका जो ग्रूमिंग है बेसिकली, यू नो, द फर्स्ट एड एंड एवरीथिंग, तो ये आपने हैव यू डन सम टाई अप विद सम नर्सिंग होम और वेटरिनरी हॉस्पिटल, और व्हाट इज वेयर डू यू नथिंग. एक्चुअली टेक देम? सो आई टेक देम टू आर्केडिया. डॉक्टर रूहिल एक पेट क्लिनिक है, वहां पे डॉक्टर हरदीप और डॉक्टर रूहिल हैं जो मेरे हाँ जी. डॉग्स का ट्रीटमेंट करते हैं. ओके. एंड दे आर वेरी नाइस. वो हम्म. कुछ हद तक आपको डिस्काउंट जरूर देते हैं. हम्म. लाइक जो नॉर्मल चार्जेस आपके डॉग्स के, आपके पेट के होते हैं, हाँ जी. उससे 20-30% कम. ओके. और ओके. डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, जैसे कोई भी डॉग कहीं बीमार होता है तो उबर ड्राइवर है एक, जिनसे हम्म. मैंने टाई अप किया है. बट ही चार्जेस मी 30% एक्स्ट्रा व्हाई? डॉग को लाने ले जाने के लिए, कि उसकी गाड़ी गंदी हो जाती है. अच्छा. ओ माय गॉड, सी. आई Not मीन, everybody has a heart like you and me, or maybe वेरी ट्रू, somebody who वेरी is ट्रू. more into animals. They are not that considerate, they are not that compassionate as you So are. कई लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं जो आपको 10-20% डिस्काउंट दे देते हैं Hmm. ट्रीटमेंट में या किसी पेट सप्लाई में. अदरवाइज कोई फैसिलिटी कुछ नहीं है जिसमें आपको जरा भी हेल्प मिल जाए. So जो how do you एनजीओज हैं manage? बेचारे, वो How do you manage, Ayushi? Because I think these things which you are doing, this requires a lot of funds also. Uh, एब्सोल्युटली. so, I mean, are there people who are giving donations for this cause? जैसे आपने आपका जो group है, NGO, that is Angel, फरी Furry एंजल. Furry Angels. So the name itself is very catchy, very interesting. बट मैं पूछना चाह रही थी कि कैसे आप मैनेज कैसे करते हो, बिकॉज इसमें आई कैन अंडरस्टैंड एक बच्चा भी अगर हो घर पे, आई मीन एक इंसान का भी बच्चा अगर हो, तो आपका एक एडिशनल कॉस्ट अटैच बढ़ होता जाता है. है. देयर आर एक्सपेंसेस, यू नो, ओवरहेड्स व्हिच गो अप. लेकिन यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी स्ट्रीट डॉग्स, सो मेनी यू नो अदर एनिमल्स एज वेल. उन सब चीजों का ये करना, तो उसमें तो काफी ज्यादा खर्चा होता है. तो हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज ऑल दीज थिंग्स? कैसे करते हो आप? शुरू में तो ये होता था कि जब मैं जॉब करती थी तो मैं कुछ पोर्शन निकाल के अपनी सैलरी में से रखती थी, अच्छा. जिससे मैं फीडिंग या कोई बीमार हो गया उसमें से मैनेज कर लेती थी. अच्छा. जब तक ओके. 20-30 डॉग्स थे तब तक घर से चल जाता था खर्चा, क्योंकि हम्म. हमारे खाने में से ही हम उनको भी दे सकते थे. हाँ राइस जी. एक्स्ट्रा बना लिए, दही हाँ. एक्स्ट्रा जमा ली, हम्म. लस्सी एक्स्ट्रा बना ली, या दलिया एक्स्ट्रा बना लिया. हम्म. और पापा मम्मा भी बहुत सपोर्टिव थे. बट जब देखा कि अब हैंडल नहीं हो रहा है, तब हम्म. मैंने अपना पेज शुरू किया इंस्टाग्राम. अच्छा. ओके. और धीरे धीरे करके, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट इस काम को लेके जब मुझे हेल्प चाहिए हुई, तो मैंने स्टार्ट किया अपने काम को पोस्ट करना. हाँ और जी. कभी भी टू बी ऑनेस्ट किसी से जाके पर्सनली कभी डोनेशन नहीं मांगी. हमेशा ये लिखा अपने पोस्ट में, इफ एनीबडी विश टू कंट्रीब्यूट, अगर हम्म. आपकी मन से इच्छा है तो. वॉलंटरली. हाँ. या. एग्जैक्टली. हम्म. और भगवान ने मुझे कभी निराश नहीं किया. हाँ जी. मैं ओके. हमेशा अपनी कॉस्ट कवर कर पाई, जितने भी उन बच्चों के ट्रीटमेंट में, खाने में कभी भी लगे. पहले फैमिली की सपोर्ट थी और कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स की सपोर्ट थी जो मुझे कभी डॉग फूड हाँ जी. भेज देते थे. ओके. बाद में मुझे लोगों की मिली, और सिर्फ इंडिया से ही नहीं, विश्व भर के लोगों से मिली, अलग अलग वेरी ओरिजिन के नाइस. लोगों से मिली. अमेजिंग. और वो ट्रस्ट बिल्टअप हुआ जब उनको डेली अपडेट्स मिले. अगर ओके. मैं किसी पपी को 6 दिन लेके जा रही हूँ, तो हम्म. आपको 6 दिन की वीडियो मिलेगी मेरे पेज पे, हम्म. आई कि सीन 6 दिन में उसकी I've क्या personally रिकवरी हुई. seen, I've watched so many videos which you keep on uploading, you know, on your page. I've seen that. It's like a remarkable, really nice, very nice. So I try to capture each and every moment. My Hmm. most precious donation was कि एक साइकिल रिपेयर करने वाले भैया ने हाँ जी. 20 रुपए डोनेट किए थे गूगल पे से. और अच्छा. ये कहा था कि मैडम, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, एक डॉग का, हाँ जी. और ही सेड इट टू मी कि आप उसका ध्यान रखिएगा. मुझे पता है ये अमाउंट बड़ा नहीं है, पर Wow. ये आपको जरूर मदद करेगा. माय So हार्ट एंड माय sweet. आईज So वर sweet. मॉइस्ट.
So कि sweet. इतना बड़ा दिल जो लोग ऐसे रखते हैं, हाँ जी, दे आर द मोस्ट प्रेशियस वन। वेरी ट्रू। हाँ, वेरी ट्रू। देखिए कभी मुझे मैटर ये नहीं करता है आयुषी, जैसे आपने बोला ना कि मैटर ये नहीं करता है कि उसने कितना अमाउंट दिया, मैटर करता है उसका एब्सोल्युटली, जेस्चर, thought एग्जैक्टली, process, you know, the kind of kindness, compassion which that person has shown, एग्जैक्टली। वो मैटर करता है। बहुत बढ़िया, वेरी ऐसे नाइस। बहुत लोग जुड़े मुझसे, छोटे छोटे टपरी वाले, हाँ जी। रिक्शा वाले, हम्म। जिन्होंने ऐसे मुझे ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू देख के पैसे भेजे। हम्म। और मैं शायद आपको बता नहीं सकती कि मेरा दिल उन दिनों कितना भर आया था कि कितने अच्छे हैं ये लोग। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो ये आप कितने सालों से कर रहे हो आयुषी ये काम? दिस इज माय 6th ईयर। ओके, मैं 6 years, फुल फ्लैज ये 3 साल which से is a कर रही हूँ। very very long time, I mean long वेरी period. लॉन्ग टाइम। पर इट I can सीम्स लाइक understand. मैंने कल ही तो स्टार्ट किया था। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से ट्रेट्स होने चाहिए एक इंसान में, मे बी अ यंगस्टर, फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब विच यू आर डूइंग, दिस काइंड ऑफ वर्क? क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है एक पर्सनालिटी ट्रेट में? देखिए, सैक्रिफाइस, आपको अपने आप को भूलना पड़ता है जब आप किसी के दुख में, हम्म। किसी की सफरिंग में मदद करते हैं। हाँ जी। और अगर आपके अंदर वो पावर है कि आप हम्म। अपना लाइफस्टाइल, अपना कंफर्ट, सब कुछ छोड़ के किसी की मदद कर सकें, किसी का दुख कम कर सकें, राइट। टू लिव अ लाइफ लाइक मी, हम्म। सबसे पहला तो वही है। और दूसरा विल पावर, पॉजिटिविटी, कि आप उस सिचुएशन में व्हेन यू आर सीइंग ब्लड ऑल ओवर योर क्लोथ्स, यू आर That's, वेटिंग आउटसाइड द वेट क्लिनिक, I एंड यू can हैव टू बी understand. पॉजिटिव दैट आई हैव टू सेव दिस डॉग नो And मैटर with व्हाट। lot of patience, I believe, lot of patience. लॉट्स ऑफ पेशेंस, Yeah. lots of positivity in your heart, Hmm. lots of prayers in your mind. I can I understand. mean, I can't tell you that honestly कि कई बार जब वो बच्चे चले जाते हैं आपकी गोदी में, आपके हाथों में, हाँ जी। when they are no more with you, how hurtful that is। हम्म। कि कई लोग रैन ओवर कर जाते हैं ये सोच के, अरे ये तो किसी को बिलोंग ही नहीं करते। बिलोंग ही नहीं उनको करते, क्या और पता। कुछ उससे उसका कोई लॉज नहीं है, देयर आर नो लॉज यू नो व्हिच आर हाँ, ना प्रोटेक्टिंग देम, आगे उसके ना देयर पीछे, लाइव्स, बट and in fact मेरे nobody जैसे is going to लोग, complain, but yes, they are also living beings. and they also have a family, they have me। So many of my dogs have left Very me in true. 2020 and 21, हाँ जी। and they still have a corner in my heart every day when I wake up, I pray for their souls कि भगवान उनकी आत्मा को पीस देना और उनको वापस कभी जानवर मत बनाना। आयुषी, आपकी ये बातें सुन के पता है मुझे क्या याद आ रहा है? यू नो, सिर्फ हम सुनते आए हैं बचपन से कि एंजल्स आर ऑल अराउंड अस, यू नो। एक और चीज हमें बताई जाती है बचपन से कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, सो दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड मदर्स एट every home. Absolutely। I think this can be said for you as well, because you are actually behaving like a mother to these dogs and the other animals, and you are crying also. This shows your connection with them, the soulful connection with them. Hats off to you, and the kind of you know uh, work you are doing. I am so Thank happy you। to have you here. I'll definitely, I'll salute you for this. Thank you so much. It Being at means a this stage, lot। I think God bless you with all the good things in life, और आप बहुत तरक्की करो, बहुत सक्सेसफुल हो, आपको इतने सारे लोग आगे बढ़कर, in fact I would like to request our viewers today who are watching this talk show to come forward, and please pay a visit to the page, Furry Angels, Ayushi का जो page है, she is doing a commendable job, and I would request, I would ask everyone to pay a visit, and please come forward, donate as much as possible. If in case you do it voluntarily, there's no compulsion, as Ayushi very well Absolutely। said, Even there's no it's compulsion. not compulsion that they should do for my dogs। उनके लिए मैं कर रही हूँ। हाँ वो जी। अपने एरिया में किसी भूखे डॉग को खाना हाँ, दे सकते हैं। ये बहुत बहुत ही अच्छी चीज है। मेरे लिए वो भी I बहुत was बड़ी बात actually, होगी। when I saw your first video, Ayushi, when I actually watched your video, I was also thrilled. I was so amazed to see the kind of work you were doing, the way you were actually holding them in your hand with a lot of compassion, and love for them. And I think you were once, एक आपकी वीडियो में था कि आप वो जो गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं
वो शायद आपने सारे स्ट्रीट में रख रहे थे and you were actually creating homes for them during Yeah. winters, if I'm not wrong. You know, I'm following your page since almost more than 6 months by now, and really amazing work you have been doing. You Really, have to be very creative on streets, you know. कभी yeah. भी कुछ भी कोई उठा के ले जाता है. So हाँ, मैट्रेस बेसिकली प्लेस करना हाँ जी. या उन टायर्स के अंदर का जो भी यू नो ट्रैश निकलता है वो बोरियों में भर के वो कडली कडली बोरीज हो जाती हैं तो उसपे स्ट्रीट डॉग सोना पसंद करते हैं. हाँ, it becomes बोरियां अलग comfortable. अलग जगहों पे रखना उनके रखना. लिए. But देखिए, सो देखो, विंटर्स में ये जरूरी नहीं है कि आपने क्या रखा उनके लिए. जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपने सोचा उनके लिए, you have gone out of the way to think about them, and you have been doing such a wonderful job. आप कुछ ऐसा उनके लिए सोच रहे हो. और सबसे बेस्ट चीज है आपके अंदर, मैं आपको बताऊं, I can actually tell in front of everyone that this is 24/7 work which you are doing. एब्सोल्युटली. You do not have any other source of income, which is commendable. So you have actually made it your full-time career, if I'm not Yeah, wrong. now Yeah, it's my full time responsibility. beautiful. मैं इसको करियर नहीं कहूंगी टू बी ऑनेस्ट. ये मेरी जिम्मेदारी है एज अ ह्यूमन बीइंग Zimmedari. एंड हायर्ड बाय गॉड टू बी ऑनेस्ट. Very nice, very nice. So nice of you. Do you have any other hobbies, Ayushi, as a person, ओह यस. apart from the work which you are doing? और आप क्या पसंद करते बिल्कुल. हो? आई वॉज अ वेरी गुड डांसर इन माई स्कूल टाइम्स एंड मैंने अच्छा. काफी टाइम मॉडलिंग भी की है काफी सारी एजेंसीज के लिए. You are उसमें काफी very good सारे looking, अच्छे. I must say. You, थैंक यू. yes. उसमें काफी नामी ब्रांड्स भी थे बट वो कुछ टाइम की थी क्योंकि हॉबीज कभी इंसान की परमानेंट आप परस्यू नहीं करते हो. हाँ जी. सो Right. मुझे डांसिंग बहुत पसंद था. मुझे मॉडलिंग करना बहुत पसंद था. बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दीज ऑल थिंग्स आर टेम्पररी इन योर लाइफ. Mm-hmm. व्हाट मैटर्स इज यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग सो दैट आपको लोग जाने कि अरे मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत अच्छी इंसान है. ये आजकल हमें कहाँ सुनने को मिलता है. सुनने को ही नहीं मिलता. आई डोंट Very थिंक पीपल से दैट. yes. People say he or she is very successful. उसने बहुत तरक्की की है जीवन में, या कोई बहुत अमीर है, या उसके पास बहुत गाड़ियां हैं, नौकर चाकर इंटेलिजेंट. हैं, बंगले हैं. But yes, very true. ये सुनने को नहीं मिलता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है. बहुत अच्छा इंसान है. Right. बहुत कम मिलता है. Very well said. Very well said. So I एक always want myself to be recognized as that person कि ये बहुत अच्छी इंसान है. एक इसके Doesn't matter ऊपर whether I'm beautiful, rich. इसके ऊपर एक, I think I have seen one meme also, which was circulated extensively. उसमें लिखा था कि एक छोटा बच्चा एक बुजुर्ग से पूछता है कि प्लीज मुझे बताइए कि किस करियर में मुझे अपना हाथ आजमाना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप हो ग्रोथ का. तो ही सेड कि प्लीज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. उसमें बहुत स्कोप है. Oh, absolutely. सो आई थिंक हमें अपने जो आज के बच्चे हैं, मिलेनियल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो आपको देख रहे होंगे इस प्रोग्राम में, they would be highly inspired today, Ayushi, by your life journey. Right. और जो काम बिल्कुल आप कर रहे सही. हो सकता है कि वो भी कोशिश करें कि हमें भी एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, और अपने लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, और उनके लिए भी कुछ करना चाहिए. Commendable, amazing, very nice. इसके अलावा बिल्कुल बताइए कि बिल्कुल आपकी what करना is your चाहिए. biggest learning, Ayushi, so far? What is your biggest learning so far in your life? Yes. So my biggest learning would be that is taught by a very intelligent person who's very close to my heart. That I'm following since 2-3 years now. That earth is not going to split and heavens are not going to fall. कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, you have to be positive, you have to be keep moving. Very true. It's not कि आज आप ये सोचो कि हर दिन एक रेनबो भरा होगा और हर दिन सनशाइन आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता. Right. Every day it's all highs and lows, up and down. Very And well said. this quotation keeps me moving every day through thick and thin कि heavens are not going to fall. You have to keep moving in your life. Wow, very nice, very nice. How do you differentiate love from compassion? What is the difference according to you between love and compassion?
मेरे अकॉर्डिंगली बेसिकली जो लव है वो मेरा मेरे पेरेंट्स से है, और जो Okay. कंपैशन है वो मेरा मेरे जानवरों से है स्ट्रीट्स पे, क्योंकि Right. कंपैशन में उनकी सफरिंग्स मुझसे देखी नहीं जाती Hmm. और मैं उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढती हूँ। और Right. प्यार में आपके इमोशंस अटैच होते हैं, आपकी फीलिंग्स अटैच होती हैं। Hmm. होता कंपैशन में भी वही है, बट Right. कंपैशन में you think that that suffering which an animal is having is yours. So It's it's yours. all very different meaning. Hmm. So for me, love is my parents and compassion is animals for me. Very nice. So sweet, so beautiful. Such a beautiful answer you have given, Ayushi. Thank you And so much. at the end, I would like to know something about your personal life. I can understand. Please. I'm also a parent. I'm a mother of a son, grown-up son. He's of your age only, and they might have actually have some plans for your marriage. So, are Oh, you planning to definitely. get married? Because since you are actually, or probably the better question would be like, would you be actually pursuing your passion even after marriage? क्या आप उसको कंटिन्यू रखोगे एज इट इज इस पैशन को? डेफिनेटली मैं रखूंगी, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर में है, वो मैं हूँ। शादी के बाद मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं होने वाला है कि मैं सब छोड़ छाड़ दूंगी। इट्स मी, इट्स इन माय कैरेक्टर, इट हाँ, इज बेसिकली आयुषी जो है वो यही है। अ यही गुड है। ह्यूमन बीइंग, वेरी हम्म। सॉफ्ट टुवर्ड्स एनिमल्स, और राइट। मे बी अ वेरी नीडी ह्यूमन बीइंग। हाँ, हाँ। मेरा दिल ऐसे हो जाता है कि आई कांट टेल यू। सो डेफिनेटली एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी फैमिली वही होती है जो एक लड़की को मोटिवेट करती है, क्योंकि उनके राइट। घर में भी डॉटर्स होंगी, उनके हम्म। घर में भी और वुमेन्स होंगी। तो बिल्कुल। जब आप उनको फॉलो करने से कभी कुछ नहीं रोकोगे, तो डेफिनेटली जो अपना घर-बार सब आपके लिए छोड़ के आएगी, आप हम्म। उसको भी नहीं रोकोगे। इट्स बिल्कुल। वेरी इम्पोर्टेंट कि एक अच्छा इंसान जो आपको इन एग्जैक्टली। चीज़ों में मोटिवेट करे, वही एक अच्छा लाइफ पार्टनर कहलाता है। वेरी ट्रू। और एंड अ जिस वुमन बहुत शुड बढ़िया बात नॉट बोली चेंज आपने। हाँ जी। her identity after marriage. She should be what she is. She should follow her passions, राइट। her hobbies, or whatever she likes. बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा बोला आपने। इनफैक्ट मुझे मैं दिल से इस चीज़ के लिए आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि इस उम्र में ऐसी सोच बहुत रेयर बच्चों की होती है और अगर आपकी ऐसी सोच है इस एज में तो दैट आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू योर पेरेंट्स एंड योर ग्रैंडपेरेंट्स क्योंकि उन्होंने आपको एक ऐसी नर्चरिंग दी है, ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है आपकी आयुषी और कांग्रेचुलेशंस टू यू स्पेशली व्हाई बिकॉज़ होता क्या है कि माँ-बाप हर माँ-बाप चाहता है उसका बच्चा एक अच्छा इंसान बने और सक्सेसफुल भी हो। लेकिन अगर बच्चे उसी संस्कारों को या उसी उन्हीं वैल्यूज़ को आगे तक लेके जाते हैं और फिर उनको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी ज़िंदगी में उनको अपनाते हैं, इससे बड़ा तोहफा मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए बच्चे नहीं दे सकते इससे बेहतर क्योंकि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी भी बहुत अच्छी खूबसूरत बनाई हुई है और उसके साथ साथ वो दूसरों की भी केयर करते हैं जैसे आप कर रहे हो तो आई थिंक दिस इज रियली रियली कमेंडेबल and once again I thank you so much. In fact, when I started this talk show I also wanted to invite people like you Ayushi because मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत अच्छी बातें सीख सकते हैं पॉजिटिव चीजें सीख सकते हैं जैसे आप काम कर रहे हैं इसी तरह और भी लोग हमसे जुड़ते रहेंगे जो दूसरों को प्रेरणा देंगे इंस्पायर करेंगे तो यही मेरा भी मकसद था दैट वाज माय पैशन आल्सो सेम वे ब्यूटीफुल आई सीज ब्यूटीफुल पीपल, हाँ आप हाँ ब्यूटीफुल हो इसलिए आपको मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ जी एंड आई एम सो हैप्पी टू बेसिकली कम इन अ शो जहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है। आजकल आपको इंटरनेट पे हर जगह इतनी नेगेटिविटी देखने को मिलती है, एंड द सॉर्ट ऑफ वर्क यू आर डूइंग एंड यू आर वेरी पैशनेट। मनु जी, माय मैं प्लेजर बिल्कुल थैंक यू इस सो बात में मच आपकी तारीफ करना चाहूंगी। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज यूट्यूब पे देखे हैं और रिक्वेस्ट थैंक यू करूंगी सबसे कि वो जाके उन सब वीडियोस को देखें और सीखें उनसे। इट्स हाँ सो जी मच लर्निंग इन योर इंटरव्यूज, एंड जो तजुर्बे शायद आप लोगों से पूछते हैं वो किसी किताब में नहीं होते। वेरी ट्रू So वेरी your ट्रू show is amazing, let me tell you. You are an amazing woman. And सो all स्वीट thanks to ऑफ your यू mother also, because she raised you very amazingly. Thank you so much. My parents are also my biggest inspiration, Ayushi, the way you have actually mentioned. I think ये हमारे जो एक समाज के जो एक
कहते हैं ना प्रेरणा स्रोत जिन्हें बोलते हैं, वो हमारे माँ बाप ही होते हैं। तो अगर उनका आशीर्वाद लेके आप कोई भी काम करते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हो लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, डेफिनेटली। thank you so much once again, Ayushi, for coming, sparing your valuable time to be a part of my talk show. And I would, give you all the best. I would actually congratulate once again for doing such a noble, work for all these street dogs, and in fact, not just dogs. I think other animals also. When आपको Cows, birds को, cats, birds, cows को, even anyone. monkeys, you were feeding monkeys also one day. I've seen one of your Definitely. video. Yes, yes, yes. Yeah. Absolutely. So pay my regards to your parents, your grandparents, and we'll definitely remain in touch. And मैं आशा करती हूँ कि आज के इस एपिसोड से बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो आज के हमारे बच्चे हैं, जो कुछ हट के कुछ जीवन में करना चाहते हैं, तो आप इनसे कुछ सीखिए। आयुषी is inspiring all of you to actually think for those creatures, those living beings जो बोल नहीं सकते, जो अपनी तकलीफ हम किसी को बता नहीं सकते, जो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो आप आइए उनके लिए कुछ कीजिए। जैसे आयुषी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आपने उन्हीं के बच्चों के लिए कुछ करना है। यू कैन एक्चुअली डू इट in your streets, in your Absolutely. locality, wherever you are staying. So once again, a big salute to you, Ayushi, and all the best for all your future endeavors. Thank you so much once again for giving me this opportunity. I feel so honored. Thank you. My pleasure. Thanks a lot. Thank you. तो देखा आपने किस तरह से आयुषी इन स्ट्रे डॉग्स के लिए, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कितना अच्छा काम कर रही है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में इन बेजुबानों के लिए कुछ करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए कंपैशनेट होना चाहिए, उन पर दया दिखानी चाहिए। मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि बेशक आप आयुषी के इस सफर में उसका साथ ना लीजिए, लेकिन आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, अपनी लोकेलिटी में, जहाँ आपका घर है या ऑफिस है, वहां अगर आपको कुछ इस तरह के जानवर ऐसे दिखते हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, तो प्लीज आगे बढ़िए और उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए, जिस भी रूप में आप करना चाहें। If you know somebody who has been an inspiration for others and has been contributing a lot in making a difference in other people's life, do write to us on my email ID mentioned below, askmanu2k@gmail.com. You can also connect with us on the Instagram handle as well as the Facebook page. Kindly subscribe to my YouTube channel, Ask Manu, for watching all the motivational and inspirational videos. Your life is a message to others. Make sure it's inspiring. Signing off. See you all in my next episode.